So, friends, on behalf of My Retired Life Foundation, we extend a very hearty welcome to all of you for yet another interesting and exciting talk by one and alone, Amruta Lovekar. And this talk is going to be the brain gym exercises. Those who are not aware of Amruta, Amruta is a gerontologist. She's a very known personality in the city of Bombay. She's also working as the project manager of the Graceful Living, which is a joint venture between Quincy Trust and the Deathstroke Hospital. So she has been with us for quite some time. She has taken quite a few number of sessions. And today she will be talking on the brain gym exercise. Amruta, the floor is open. Okay, so thank you very much, Dr. Sengupta, for inviting me. It's always a pleasure to be on this platform. So one thing that I like about your platform and the group is कि आप लोग हमेशा कुछ न कुछ नया रिसीव करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, which I think is a very very good thing. So one good thing in old age and one very important thing in old age is being open to new experiences. तो जो मुझे आपके ग्रुप में दिखता है, तो आज का जो टॉपिक है ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस काफी इंटरेस्टिंग है. हम लोगों ने थ्रू ग्रेसफुल लिविंग काफी सारे सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशंस में किया है, तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला है. हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे एसोसिएशंस वो एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई सजेस्टेड टू डॉक्टर सेन गुप्ता कि हम लोग आपके साथ भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी एंड देन आई विल आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दीज एक्सरसाइजेस. ओके, बट सबसे पहले आई लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट मेंटल हेल्थ. और मुझे लगता है कि पैंडेमिक के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा हो रही है. सो mental health is more than the absence of mental disorders, and as we know that it is an integral part of health, and there is no health without mental health. Okay, so mental health is extremely important. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अभी एक हाल ही में उसका एक रिवाइज्ड डेफिनेशन दिया है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ. So it says that it is a state of well-being. Mental health जब भी हम लोग बात करते हैं तो it is a state of well-being. The second, this is individual realizes his or her abilities. मुझ में क्या अच्छा है, what do I like, what are my strong points. So individual realizes that. Third, I think is the very important thing, can cope with the stresses of life, whatever tensions we have, whatever worries we have, concerns we have, so the ability to cope with that. दूसरा है can work productively. So volunteerism I think is a very very important part, and we will talk also about this aspect. और दूसरा है कि ability to make some contribution to his or her community. तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है. बहुत सारे सीनियर्स आप लोग भी करते होंगे अपने कम्युनिटी में कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियरिंग करना, कोई एनजीओ के साथ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ ना कुछ आपके पास जो एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, उसको कंट्रीब्यूट करना. सो द एबिलिटी टू डू दैट वेयर आई फील इम्पोर्टेंट, वेयर आई फील valuable, and I feel that my existence is important. So these are the some aspects which are there, which I thought were very important. और उसमें काफी सारा मतलब एस्पेक्ट्स कवर हो जाता है. तो इसमें आप देखिए कि मतलब फिजिकल हेल्थ तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जब भी हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सम काइंड ऑफ एंगेजमेंट इन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट दिस डेफिनेशन इज आल्सो ट्राइंग टू से. अभी बहुत सारा जो रिसर्च हुआ है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, व्हाट आर दोज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. तो वन इम्पोर्टेंट थिंग इज सोशल नेटवर्क. तो सोशल कनेक्शंस आर इम्पोर्टेंट इन एनी एज, बट वृद्धत्व में वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. तो वी माइट हैव a few people with whom we can connect, and I can see that in your network also, in your group also, कि जहाँ पे मतलब whatever is there on your mind, or whatever concerns are there, वो आप लोग शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. तो those kind of close connections. तो मतलब सिर्फ बहुत सारे लोग मालूम होना is not important, but if we have
close connections, the quality of the connections is what is most important. तो सोशल नेटवर्क, जब भी हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सोशल कनेक्शन, सोशल नेटवर्क्स, लोगों के साथ क्लोज बॉन्ड्स होना, ये बहुत एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज है. तो द क्वालिटी ऑफ द कनेक्शंस इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रादर देन नोइंग 50 people, 100 people. The second, this, which we have also spoken about in the past, is purpose. Having a purpose in life. Ikigai, आप लोगों ने शायद वो book पढ़ा होगा, where some kind of a flow in life, some kind of a purpose in life where I feel that I have something to do. I have a reason to get up in the morning and do something, contribute something. तीसरा है helping others, and that उससे बहुत सारा inner satisfaction मिल सकता है. मुझे लग सकता है कि मेरा existence is valuable. So helping others, volunteering is a very very important. और हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको शायद मतलब दिए होंगे. आबिद सुरती का एग्जाम्पल है जिन्होंने ये संस्था खोली है कॉल्ड ड्रॉप डेड फाउंडेशन. तो वो मीरा रोड भाईंदर में अलग अलग जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज हैं, वहाँ के स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे जाते हैं और जो लीकिंग टैप्स है वो रिपेयर करते हैं. तो ही सेज दैट वाटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड आई फील दैट दिस इज माई पर्पज इन लाइफ. So helping others is very, very important, and that also can contribute to a sense of physical and mental well-being in old age. So physical exercise we know is very, very important. तो इससे जो एंडोर्फिन्स करके जो फील गुड केमिकल्स होते हैं तो वो भी रिलीज हो जाते हैं. डिप्रेशन कम हो सकता है, हार्ट डिजीज कम हो सकता है, तो एंजाइटी कम हो सकती है. तो फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट मेंटल एक्सरसाइज. हमारे बुद्धि को, हमारे मन को भी एक्सरसाइज, मन को बोलने से बुद्धि को, हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज देना उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो आज हम लोग जो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस देखने जा रहे हैं तो उसमें एक खास बात ये है कि दिस कंबाइंस फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो एंड मेंटल एक्सरसाइज ऑल्सो. तो ये जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग योगा वगैरह करते हैं, रनिंग कोई करता होगा या फिर जॉगिंग करते होंगे. तो और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई लोग सुडोकू करते हैं या फिर रीडिंग वगैरह करते हैं, मेंटल कोई पजल्स वगैरह करते हैं. तो ये इसके लिए हम लोगों को अलग अलग टाइम देना पड़ता है. तो ये जो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस हैं वो कहते हैं कि ये दोनों चीजें, फिजिकल एक्सरसाइज एंड कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस, यानी हमारे ब्रेन के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं वो साथ में ही आप कर सकते हैं. Okay, and that is why it is very very important. So why should we exercise our brains is a very very important question. Okay, so the very first thing is that जैसे हम लोग हमारे बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं उसी प्रकार से some kind of meaningful mental effort and stimulating our minds on a regular basis is extremely important. Okay, so on a regular basis, whatever you find is meaningful. Okay, so doing that on a regular basis is very very important. That helps us exercise our brains. दूसरा है जो हमारी मेमोरी है. मुझे लगता है अभी मैडम वाज टॉकिंग अबाउट इम्प्रूविंग मेमोरी. तो ये अगर हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी मेमोरी को भी में भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है. एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो कॉग्निटिव डिक्लाइन, जिसको हम लोग विचारात्मक, जो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है हमारा ब्रेन, और या फिर जो कॉग्निटिव डिक्लाइन आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा डिले करने के लिए, थोड़ा सा पोस्टपोन करने के लिए भी हेल्प हो सकती है. एंड दैट इज व्हाई कॉन्स्टेंटली रिसर्च हैज स्ट्रेस्ड टाइम एंड अगेन कि हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज देना बहुत 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 जरूरी है. ओके ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस को जोड़ता है. ओके,
तो brain gym is a series of movements done with the intention to wake up the brain and stimulate brain function. ओके तो हम लोग देखते हैं कि हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, और वो दोनों में इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है. बहुत सारे जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं उसमें दोनों का भी कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जनरली हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं, जो भी कुछ हम लोग काम करते हैं, उसमें बहुत टाइम हमारे ब्रेन को उतना एक्सरसाइज या स्टिमुलेशन नहीं मिलता है. तो इसके लिए दीज आर अ सीरीज ऑफ मूवमेंट्स डन विद द इंटेंशन टू वेक अप द ब्रेन. The second, this is it is designed to strengthen the relationship between the body and the mind. As I said, ke physical and mental exercise combined. So who developed it? Okay, so it was actually developed by Paul and Gail Dennison from the US in 1960s. तो वो एक्चुअली लर्निंग डिफिकल्टीज जो बच्चों में होते हैं उनको वो स्टडी कर रहे थे, और उनको उनके लिए उन्होंने ये एक्सरसाइजेस डेवलप किए. और वो डेवलप करने के बाद उनको लगा कि दिस इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, दिस इज एप्लीकेबल फॉर इवन सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल फ्रॉम एनी एज ग्रुप. ओके, और उनका जो मेन मतलब मोटो था, तो उन्होंने कहा कि मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट दे कॉल इट द साइंस ऑफ काइनेसियोलॉजी. सो द साइंस ऑफ मूवमेंट, and movement we see is also very very important in old age. तो उन्होंने जो मूवमेंट्स है बच्चों में, मूवमेंट्स है मतलब पहले जो 7 साल में हमारे हैंड्स में, लेग्स में, और जो भी कुछ हमारे बॉडीली ऑर्गन्स में जो कोऑर्डिनेशन होना इम्पोर्टेंट है, जो पहले 7 सालों में होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन को सामने रखते हुए इन्होंने ये एक्सरसाइजेस डेवलप किए हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज एक्सरसाइजेस आर क्वाइट सिंपल. ओके, और आज हम लोग देखते हैं कि करीब 80 देशों में, in around 80 countries, these brain gym exercises are performed and practiced by people from different disciplines, people from different professions. तो बिजनेस पर्सन्स यूज करते हैं, स्कूल के बच्चे यूज करते हैं, एक्टर्स यूज करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स, एथलीट्स. तो ये फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स पीपल आर यूजिंग दीज एक्सरसाइजेस एंड फाइंडिंग देम useful. ओके, तो हाउ कैन इट हेल्प ओल्डर अडल्ट्स? तो एक तो ये है कि मोबिलिटी, हमारा कोऑर्डिनेशन उससे इम्प्रूव हो सकता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी इम्प्रूव हो सकती है. कॉन्सेंट्रेशन जो है, अटेंशन, द कैपेसिटी टू पे अटेंशन टू समथिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, दैट ऑल्सो कैन इम्प्रूव. Okay, so learn new skills faster and easier if you want to. हम लोग देखते हैं कि वृद्धत्व में वो हिसाब से एंजाइटी भी हो सकती है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन की भी संभावना हो सकती है, उसके वजह से मूड्स भी हमारे थोड़े ऊपर नीचे होते हैं. सो इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग आवर मूड्स ऑल्सो. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉग्निशन. ओके, बीइंग अलर्ट. ओके, तो ये एक्सरसाइजेस इसमें भी हेल्प कर सकते हैं इन इम्प्रूविंग अवर थिंकिंग एबिलिटी. दैट इज व्हाट वी मीन बाय कॉग्निशन. एनर्जी लेवल्स आप करेंगे, आपको और ज्यादा एनर्जेटिक लगेगा, एंड ओवरऑल वेलबींग कैन ऑल्सो इम्प्रूव. So these are some of the benefits which are there, which have been listed as some of the benefits of brain gym exercises. Okay, so I will demonstrate the exercises. So, and you'll be able to do them. ऐसा ही करते हैं सर? हाँ हाँ. हाँ. ये स्क्रीन नहीं चाहिए तो इसको बंद कर दीजिए. शेयर स्क्रीन करेंगे, शेयर स्क्रीन जरूरी है. हाँ, मुझे आपको बताना पड़ेगा ना. हाँ ठीक ठीक ठीक. ओके. हाँ. ओके, तो सबसे पहले जनरली कोई भी एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले एक मार्चिंग कर सकते हैं, तो इससे हमारा
हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है, बैलेंस भी हो जाता है. शुड वी डू दैट? थोड़ा बहुत एक, is it possible for people to stand and do some marching? Is that possible? The other exercises can be done, maybe you can sit on the chair also, you can do it, or maybe you can do it in a standing position also. तो जैसे आपको होगा आप ये कर सकते हैं. ओके, तो आपको सिंपल मार्चिंग करना है. ओके, आर यू एबल टू हियर मी? Yeah. या ओके. सो सिंपल हम लोगों को ये एक्सरसाइजेस शुरू करने के पहले वी हैव टू डू सम मार्चिंग. उससे एज आई सेड हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होता है, थोड़ा बहुत बैलेंस भी हो जाता है. सो डू इट मे बी फॉर अ मिनट और सो, and then you can come back to your chair or you can continue to stand as is comfortable. Okay, then We are not able to see you fully actually while doing now that. you'll be able to see me because I was standing. Yeah. So the first exercise, पहला तो marching था, it's like a warm up exercise. तो ये जो पहला exercise है, that is called brain buttons. Okay, so this basically means switching on the entire brain before you begin any kind of activity. Okay, and this also helps in blood circulation. Okay, तो ये जो है इसमें हम लोगों को क्या करना है, आप ये बैठ के भी कर सकते हैं. हम लोगों को क्या करना है, आप ये सब either you take these 3 fingers या फिर आप your hand needs to be placed on the carotid artery. ये जो कॉलर बोन हम लोग बोलते हैं ना, कॉलर जहाँ पे आप शर्ट पहनते हैं उधर जहाँ कॉलर आपका शुरू होता है, तो ये जो है यहाँ पे हम लोगों को लाइटली मसाज करना. ओके, सो यू नीड टू मसाज दिस. यहाँ पे दिखाया है, देखिए आपको दिख रहा है दिस पिक्चर. सो दे आर लाइटली मसाजिंग the carotid artery या फिर as we call it the collarbone. Okay, and at the same time when you're doing this, at the same time the other hand has to be on the belly and you have to lightly massage the belly. I'm just going to show you. Can you see? So यहाँ पे अलग ये है कि दोनों जो मूवमेंट्स हैं वो एक ही साथ करने हैं आप लोगों को, and that too in clockwise direction. आपको एक साइड में आप ये 3 फिंगर्स से कर सकते हैं या फिर आप सभी फिंगर्स को यूज कर सकते हैं. आपको lightly massage करना है on your collarbone and at the same time you are rubbing your belly in a soft way, not very hard. Did you get it? और यहाँ पे थोड़ा बहुत ये दिखाई भी दे रहा है आपको. Yeah, you can see. See what this man is doing. आप लोग देख रहे हैं collarbone. He is massaging lightly. You can do it with all the fingers, or at the same time he is also massaging his belly. That is called brain buttons, which is the very first exercise of brain gym, which helps in हमारे turning on the brain, waking up the brain basically. Okay, so यहाँ पे 2 movements have to be done simultaneously. That is the very first exercise which is there in brain buttons. आ रहा है समझ में? मैडम ये दोनों हाथों का मूवमेंट जो है, एक मिनट मुझे कॉलर बोन, एक मिनट. I cannot hear you. हाँ, now I can hear you. Yeah. Please tell me. Yes. ये कॉलर बोन पे हैंड है, देन बेली पे हैंड है. इसका मूवमेंट दोनों का क्लॉकवाइज होगा या दोनों का आप क्लॉकवाइज ही कीजिए.
ये देखिए, ये ओके। हाथ है मेरा, ये हाथ है, जी जी इसको जी मैं जी क्लॉकवाइज कर रही हूँ, एट द सेम टाइम बेली पे भी मैं क्लॉकवाइज ही कर रही हूँ, विच माइट बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट इनिशियली, बट इट विल गेट इजियर द मोर यू प्रैक्टिस. जी Okay, as someone was saying, practice makes a man perfect. Okay, so practice is the key. तो ये दोनों भी आपको क्लॉकवाइज करना है, एक हाथ लेना है, फिर उसके बाद दूसरा हाथ लेना है. ओके। ओके, सो एक एक मिनट तक आपको ये दोनों मूवमेंट साथ में करने हैं. Okay, so this is the very first exercise, which is called brain buttons. Okay, were you able to see it? And what we'll also do, sir, is we will revise at the end. We will also revise these exercises at the end. Okay, तो ये ब्रेन बटन समझ में आया है. आपको लाइटली मसाज करना है कॉलर बोन के ऊपर, एंड एट द सेम टाइम हम लोगों ने बेली के ऊपर भी वी हैव massaged our belly lightly in a soft way. That is the first exercise which is there, which you can also see this man performing. Okay, that is brain button. Okay, that is the very first exercise. Okay, दूसरा जो exercise है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस क्रॉल. ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, ये आप खड़े रह के भी कर सकते हैं. यहाँ पे राइट और लेफ्ट हमारा जो ब्रेन है, दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करने के लिए ये हेल्प करता है. और इसमें हम लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया है, हम लोगों को हमारा जो एल्बो है उसको हमारे नी से हमको जोड़ना है. मैं आपको खड़े रह के, ये एल्बो है, मैं उसको नी के साथ उसको जोड़ रही हूँ. हाँ, करेक्ट. ओनली थिंग इज यू हैव टू सी दैट यू डू नॉट बेंड. प्लीज डू नॉट कम फॉरवर्ड. प्लीज डू नॉट कम फॉरवर्ड. वो जुड़े नहीं तो भी चलेगा, बट डू नॉट कम फॉरवर्ड. ओके, तो ये 25 to 30 आप ये करेंगे तो भी चलेगा. व्हाट यू हैव टू डू इज के आपका जो एल्बो है दैट हैज टू बी joined to the knee. So you can do this in sitting position also. You can do this in standing position also. Whatever you feel is convenient. This is the posture has to be straight. Please do not come forward just because you want to join. Okay, that is called the cross crawl. That is the second exercise for connecting our right and left hemispheres. Ma'am, the picture shows actually the hand fingers touching the knee rather than the elbow touching the knee. नहीं नहीं, ये हम लोगों को ये क्रॉस क्रॉल में, आई थिंक शी इज जस्ट ट्राइंग टू टच द दिस आफ्टर ज्वाइनिंग. क्रॉस क्रॉल में यू हैव टू ज्वाइन द जो ये होता है एल्बो होता है उसको नी से जोड़ना है. ओके, दैट इज द क्रॉस. सो आई कुड नॉट गेट अ प्रॉपर पिक्चर. तो यहाँ पे जो ये है अपना एल्बो है, दैट हैज टू बी जॉइन टू द नी को ज्वाइन करना है. हाथों की कोहनी को. व्हाट इज दैट? हाथों की जो कोहनी है ना, कोहनी. यस, Elbow. करेक्ट. बट ओके, ये करना मुश्किल है. तो थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएगा मैडम. बेंड ही नहीं हो सब सकता है. कुछ. हाँ, थोड़ा भी बेंड नहीं हो सकता है बॉडी. बेंड नहीं कीजिए मैडम, उससे फिर ये नहीं होगा. जितना फिर होगा कैसा उतना टच करेगा? टच नहीं होता है. तो मत नहीं होने दीजिए. नहीं, फिर ये पाम से होगा, बेंड इधर से नहीं होगा. हाँ, तो इसके लिए थोड़ा बहुत तो मैडम मुश्किल तो होगा ना, एकदम इजी तो नहीं होगा कोई भी एक्सरसाइज. और जब भी आप करेंगे तो आपको वो धीरे धीरे से आपको इजी वो लग सकता है. ओके, हम लोग भी कर करके ही ये हुआ है, पहले हमारा भी नहीं हुआ था. ओके, सो दैट इज द सेकेंड एक्सरसाइज विच इज कॉल्ड द क्रॉस क्रॉल. ओके, एंड एज यू आर सेइंग, ये
आप बोल रहे हैं वो ठीक बात है, बट ये आई थिंक शी इज जस्ट ट्राइंग टू ज्वाइन आफ्टर हैविंग जॉइन द नी एंड द एल्बो. ओके, द थर्ड, दिस इज हुकअप्स. So this is basically one exercise which is useful for calming our nerves. जब भी हम लोग देखते हैं कि बहुत बार हम लोग टेंस होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो फॉर कामिंग द माइंड इट इज वेरी वेरी यूजफुल. उसमें क्या करना है, दोनों हाथ आप सामने ले लीजिए, दोनों हाथ सामने ले लीजिए, इसको एंटेंगल कर दीजिए. किया एंटेंगल? हाँ, उसको अपने छाती के तरफ लाइए. ओके, छाती की तरफ लाने के बाद आपका जो पैर है उसको आप क्रॉस कर दीजिए, जैसे कृष्ण भगवान करते हैं वो हिसाब से क्रॉस कर दीजिए. हो गया, क्रॉस किया. ओके, अभी आप थोड़ा सा आंख बंद करके आप अपने ब्रेथ के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए. यू विल फील मच कामर. ओके, लग रहा है थोड़ा सा शांत ज्यादा. ओके, सो ये हमको क्या करना है, हाथ आगे लेके यू हैव टू एंटेंगल द हैंड्स, गेट देम टू योर चेस्ट, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू क्रॉस योर लेग्स, जैसे कृष्ण भगवान करते हैं बांसुरी बजाते वक्त. ओके, वो हिसाब से हम लोगों को वो क्रॉस करना है, क्रॉस करना है. ओके, एक बार एक पैर क्रॉस करना है, फिर दूसरे बार दूसरा पैर क्रॉस करना है. तो ये 5 टाइम्स आप कर सकते हैं, 5 टाइम्स विथ वन लेग, 5 टाइम्स विथ द अदर लेग. ओके, ये थोड़ा सा एंटेंगल करने में कई कई लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. सामने रखिए इसको, ऐसे क्रॉस, उसको एक दूसरे में एंटेंगल करके छाती के तरफ लाइए, ऐसे दिखना चाहिए. यहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे रहा है. They have taken it close to the chest. Okay, and how there is one person who has crossed the legs. Okay, so we have to cross. ये लड़की ने भी जैसे क्रॉस किया है. She has crossed the legs, as you can see. Okay, so this is hookups for calming the mind and concentrating on whatever activity is there at hand. Okay, this is what is called hookups. ये है तीसरा एक्सरसाइज, तीसरा है hookups. ओके, अभी जो चौथा है, ओके, तो चौथा है दैट इज कॉल्ड नेम्स इन द एयर. ओके, इसमें बेसिकली हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को बैठ के या फिर आप खड़े रह के भी कर सकते हैं. आपको थोड़ा, आप जैसे अगर समझो सीधे बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा टर्न करके मुझे मेरा पहला जो नाम है वो मुझे हवा में लिखना है. I am writing my first name by tilting a little bit on the side, and I am writing my name in the air. Okay, so that's why it is called names in the air. Okay, and फिर जैसे भी होता है उसको उल्टा लिखना है. कोई विशिष्ट पद्धति नहीं है, आप जैसे होगा वैसे आप उल्टा सीधा आपको वो उल्टा लिखना है. दिस एड्स, आप जैसे आपका पहला नाम लिख रहे हैं, ओके, डू इट ऑन वन साइड, देन यू कैन डू इट ऑन द अदर साइड,
एंड एज वी वर टॉकिंग अबाउट मेमोरी, ओके, तो मेमोरी का काफी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है वृद्धत्व में, तो हमारे मेमोरी को एक्सरसाइज करने के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हो सकती है। हम लोगों ने देखा है कि काफी सारे वृद्ध उसको जो भी कोई इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको रिमेम्बर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। से सपोज यू वांट टू रिमेम्बर समथिंग, ओके, देयर इज अ सब्जेक्ट जो आपको you have to remember. So whatever important points are there in that particular subject, you can write them in the air. हम लोगों ने देखा है बहुत सारे वृद्ध अगर समझो मार्केट भी जाना है तो क्या क्या लाना है बाजार से वो ऐसे लिख देते हैं उल्टा और सीधा, और फिर वो याद रखने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाती है। ओके, सो दिस इज नेम्स इन द एयर। आ रहा है समझ में? सो वॉट एवर इज इम्पोर्टेंट टू यू, यू राइट दैट फर्स्ट यू हैव टू राइट इट फॉरवर्ड, then you have to write it backward. So name in the air is just one example. You can write anything, whatever you feel is important, whatever you think you want to remember for later on, that you write in the air. Okay, so लेकिन to लेकिन अमृता सॉरी टू डिस्टर्ब यू, yeah please, कागज में लिखने का और एयर में लिखने में डिफरेंस क्या है? कागज में भी तो लिखते हैं हम लोग। कागज आप में लिखिए, मैं बहुत सारा कागज में भी लिखती हूँ, उतना मुझे याद नहीं रहता है। यहाँ पे जो कॉन्शियसली आप लिखते हैं ना, एयर में कॉन्शियसली आप जो लिखते हैं ना, तो वो रिमेम्बर, एंड आप जनरली मैं भी जो लिखती हूँ वो पूरा सेंटेंस समझो इसमें लिखती हूँ वाइल राइटिंग। यहाँ पे आप जो इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है ना वही आप लिखिए। लाइक आई जनरली राइट वॉटेवर, ये जो ब्रेन जिम के एक्सरसाइजेस के मैं सिर्फ नाम लिखूं तो फिर मुझे वो अच्छे से याद रहते हैं एक के बाद एक कौन सा करना है। तो ये एक मतलब स्पेसिफिक आपको जो याद रखना है वो आपको इसमें you have to write that in the air. Okay, so just two important things when it comes to, yes, you wanted to say something. Yes, I just read this name in the air. One of the points is you to write with both the hands. It says you write with both the hands the names. You can write your name with both the hands at the same time. Both the hands. Fourth point. So that is the kind of, there are many variations. Okay, there are many variations. Okay, so you can use all those variations also. Okay, so पहले हम लोग थोड़ा सा simple variation करते हैं, then we move on to the more difficult variations. So अलग, the next exercises we see, those also have a lot of variations. So first you can try the easier part. तो ये जो मेमोरी का प्रॉब्लम है तो उसमें एक तो ये है कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि वृद्ध जो है वो जिनमें उनको इंटरेस्ट होता है उसी में ध्यान देते हैं। तो ये अगर समझो मुझे लगता है कि मुझे कुछ रिमेम्बर करना है तो अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी जो चीज है वो रिपीटिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैडम कह रहे थे कि उसको लिखना इम्पोर्टेंट है, पर कॉन्शियसली अगर हम कोई स्पेसिफिक चीजें अगर वो हवा में भी लिखते हैं जैसे ब्रेन जिम में दिखाया है तो उससे भी हम लोगों को ज्यादा ध्यान में रहता है। तो रिपीटिशन इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मेमोरी एड्स भी जो है, तो मेमोरी एड्स यानी आप लिस्ट एक कर दीजिए कि मुझे क्या क्या ये करना है। सो हमारी ही मेमोरी को एड करने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। परसों ही मैं कुछ ये कर रही थी तो उसमें देयर इज वन पर्सन हु हैड मेड एक्रोनिम्स। आई एम श्योर यू नो व्हाट आर एक्रोनिम्स। तो ये हम लोग जैसे एक्रोनिम्स जैसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक्रोनिम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भूल जाने का जो ये है, हम लोग जितना डर जाएंगे उतना हमारा प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ता है। तो इसके लिए उससे डरने से हम लोग कैसे उसके ऊपर कोई सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं विच विल बी एप्लीकेबल फॉर मी, दैट इज समथिंग दैट आई नीड टू फाइंड। एक छोटा सा जोक जो मैंने पढ़ा था वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी कि देयर वाज वन कपल, एक जा रहे थे दो, एक यंग कपल था और एक ओल्ड कपल था। तो उसमें वो यंग लेडी ने देखा कि वो जो
वृद्ध जो आदमी है वो अपने वाइफ को मतलब बहुत लविंगली बुला रहे थे, जैसे कि डार्लिंग बुला रहे थे। तो ये दिस यंग लेडी गॉट वेरी जेलिस, सो शी सेड, अपने हस्बैंड को बोला कि तुम तो कभी नहीं मुझे ऐसे लविंगली बुलाते हो, तो आप वो जो वृद्ध आदमी है उनको जाके पूछिए कि उनका जो इसका राज क्या है, उनके मतलब रोमांस का राज क्या है, क्यों वो इतना लविंगली बुलाते हैं, आप जाके पूछ के आइए। तो उन्होंने मतलब वो जो यंग जो मैन था, आदमी था, उसने वो जाके वृद्ध आदमी को पूछा। तो तभी वो वृद्ध आदमी ने कहा कि गए मतलब लास्ट 2 hours आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर माई वाइफ्स नेम एंड दैट इज व्हाई आई एम एड्रेसिंग हर एज डार्लिंग। सो ये दिस इज लाइक एन एक्सट्रीम दिस, बट ये हमारी मेमोरी को एड करने के लिए कुछ न कुछ हमको ही करना जरूरी है। जनरली वृद्धत्व में हम लोग देखते हैं कि देर इज समथिंग कॉल्ड मेमोरी अवॉइडेंस। ओके, दिस माइट बी दिस मेमोरी अवॉइडेंस। ओके, तो ये मेमोरी अवॉइडेंस यानी क्या? जनरली हम लोगों को कल्चरली भी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को याद ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा। तो हमारा सबकॉन्शियस भी हम लोगों को यही कहते रहता है वृद्धत्व में याद नहीं रहेगा, और उसके लिए भी हम लोग कोशिश ही नहीं करते हैं चीजों को ध्यान में रखने की या फिर उसको कंसंट्रेशन से याद रखने की। ओके, तो ये मेमोरी को हम लोग अवॉइड ही करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कल्चरली भी समाज वृद्धत्व को कैसे देखता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। एंड along with memory avoidance there is something in gerontology what we call as self-fulfilling prophecy, जिसको आप जो भविष्यवाणी करेंगे वो ही सच होगी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी क्या? हम लोग ही खुद को बोलते हैं कि याद नहीं रहेगा, हम लोग वीक हो जाएंगे, फिजिकल डिक्लाइन हो जाएगा। तो द मोर वी रिपीट इट टू अवरसेल्व्स द सेम थिंग हैपेंस इन आवर ओल्ड एज आल्सो। ओके, ये एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जहाँ पे 2 ग्रुप्स में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें एक यंग ग्रुप को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दिए थे और एक वृद्ध ग्रुप को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दिए थे। अब 2 दिन के बाद वही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस उनको वापस दिए। आफ्टर 2 days, ओनली आफ्टर 2 days, those mathematical calculations were given back to them to solve. तो अभी ये यंग ग्रुप जो है उन्होंने फटाफट वो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उनको आंसर याद आ रहे थे तो उन्होंने वो झट करके लिख दिए। पर ये वृद्ध लोगों ने क्या किया? कि वापस वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है वो वापस फॉर्मूला वगैरह यूज करके उन्होंने वो वापस सॉल्व किए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था अरे हमको याद नहीं रहा, तो हमको ध्यान में ही नहीं रहता। ओके, एंड याद था मतलब बराबर उनको वही आंसर्स मिले, बट वो अविश्वास था कि मुझे याद रह सकता है, और उसके लिए वापस उनको वो रिपीट करना पड़ा। ओके, सो दिस काइंड ऑफ मेमोरी अवॉइडेंस विच इज देयर, खुद ही हम लोग बोलते रहते हैं, कल्चरली भी हमको बोला जाता है आपको ध्यान में नहीं रहेगा, ध्यान में नहीं रहेगा, एंड वही हम लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं, हम भी वो इंटरनलाइज करते हैं। ओके, सो ये हो गया नेम्स इन द एयर, वन स्ट्रेटेजी, वन सॉल्यूशन व्हिच यू कैन यूज in order to improve and exercise our memory. Okay. Another, this is called lazy 8. Okay, तो lazy 8 में भी हम लोगों को क्या करना है? सीधे हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को थोड़ा सा टिल्ट करना है, और ये जो 8 है, 8 जो आंकड़ा है इन इंग्लिश, उसको हम लोगों को स्लीपिंग पोजीशन में हमको 8 निकालना है। आ रहा है ध्यान में? हम लोगों को 8 जो है वो आपको स्लीपिंग पोजीशन में स्लो मूवमेंट्स आप लोगों को 8 निकालना है। स्लीपिंग पोजीशन में हम लोगों को ये 8 है, it is in a sleeping position, because it is in a sleeping position it is called the lazy 8. तो
we are sitting straight, we have to tilt a little bit and we have to draw this 8 in a स्लीपिंग पोजीशन. सोता हुआ हम लोगों को 8 निकालना है, तो इससे डायरेक्शनैलिटी ओरिएंटेशन में भी हम लोगों को हेल्प होती है. एक बार एक साइड करना है, फिर बाद में दूसरे साइड में टिल्ट होके स्लीपिंग पोजीशन में हम लोगों को 8 निकालना है. द नंबर 8 इन इंग्लिश, इट शुड बी ऑन द साइड इन द एयर. This is very easy. Yeah, this is not difficult. As I said, most of the exercises are not very difficult. तो ये उन्होंने जैसे 8 निकाला है, तो ये हम लोगों को इन द एयर हम लोगों को 8 निकालना है. तो ये स्लीपिंग पोजीशन में है, ये दिखाने के लिए यहाँ पे ये 8 इन्होंने बताया है. तो साइड में होके हम लोगों ने नो मूवमेंट करके जैसे लिखा हुआ था हम लोगों को 8 निकालना है, जिसको हम लोग लेजी 8 करके कहते हैं. It has to be done in both sides. बोथ साइड इट हैज टू बी डन. अभी हम लोग ये इसके लिए बोथ साइड नहीं कर रहे हैं, बट बोथ साइड्स आपको करना है. ओके, ये हो गया लेजी 8. ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ सीरीज. ब्रेन जिम में अगर आप देखेंगे, इट इज अ सीरीज ऑफ 26 एक्सरसाइजेस. पर ये 26 एक ही साथ करना मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए उसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में जोड़ा है. तो दिस इज पार्ट 1. ओके, तो ये उसका एक अलग वेरिएशन है. उसमें आपको और भी उसके ये एलिफेंट एक अलग उसका वेरिएशन है, जो आप दिखाई दे रहा है आपको. ये एलिफेंट जैसे ही दिखता है, उसके लिए उसका ये है. आपको ये हाथ जो है अपने कान के यहाँ पे लेके जाना है, एंड यू हैव टू draw the number 8. So it looks like a elephant is moving its trunk. Okay, so that is called the elephant. अभी ये lazy 8 में आपने ये 8 लिखा, उसमें का 2 वेरिएशंस हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ. ओके, तो ये जो है आपने 8 निकाला, इसका दूसरा जो वेरिएशन है, आपको आपका एक जो इसको इंडेक्स हम लोग फिंगर बोलते हैं, तो ये इंडेक्स फिंगर को हम लोगों को 8 को यू हैव टू लुक एट द टिप ऑफ द फिंगर. द टिप ऑफ द फिंगर. Tip of the finger. Okay, the second variation is the tip of the finger. Okay, that is the second variation. Okay, again these exercises important for attention concentration. The third, and you have to do it on the other side also. The third variation of lazy 8 is जो हम लोग योगा में त्राटक एक्सरसाइज में भी करते हैं. हम लोगों को थंब को सामने लेना है, और ये थंब का जो टिप ऑफ द थंब है उसको साइड में लेके अगेन यू हैव टू ड्रॉ द number 8 again in a sleeping position. ओके, तो ये तीनों वेरिएशंस आ गए. एक में सिर्फ मैंने ऐसे ही 8 लिखा विदाउट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फिंगर. In the second variation, what I am doing is I am taking the tip, the index finger, trying to concentrate on the tip of the finger and drawing the 8. The third variation, what I did was taking the thumb, concentrating on the tip of the thumb, और फिर मैंने उसको साइड में मैंने 8 निकाला. These are the 3 variations. और एक इसका जो वेरिएशन है एलिफेंट हम लोगों ने देखा. ओके,
ओके तो ये उन्होंने कहा है कि एक्टिवेट्स द इनर ईयर एलिफेंट एंड ऑल्सो शॉर्ट टर्म और हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी और हमारे थिंकिंग एबिलिटी के लिए इज ऑल्सो गुड। ओके बट जनरली एज वी से कोई भी एक्सरसाइज एक तो कंसिस्टेंटली करना जरूरी है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करना जरूरी है। हम लोगों ने देखा है कि कांदिवली सीनियर सिटीजन एसोसिएशन में करीब 6 महीने तक वो कर रहे हैं एंड दे आर enjoying the whole process and they are also seeing that they are feeling more joyful, okay, and more active mentally also, okay, so ये consistently करना important है। मैं आज करूँ फिर 15 दिन में उसमें gap करूँ, that is not going to work. At least 4 times in a week if you do it, it can produce some results. Okay, the other exercise is called रूबा डब। इसमें हम लोगों को क्या करना है, दिस ऑल्सो एक्टिविटी कनेक्ट्स द राइट एंड द लेफ्ट ब्रेन। व्हाट आई एम डूइंग, इसमें ब्रेन जिम में क्या इंपॉर्टेंट है, दो एक्टिविटी साथ में है एंड दैट टू दे आर सिंपल बट साथ में करते टाइम इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो इसमें आई एम टैपिंग माई हेड and at the same time in a clockwise direction I am rubbing my tummy as we did in the first exercise, the brain button. Okay, this should not be very difficult. Sometimes doing it simultaneously difficult ho jata hai. Okay, so what I did was tap my head and I am rubbing my belly. एक हैंड से थोड़ा बहुत ये डिफिकल्ट हो सकता है, so you do it slowly. Whichever hand you find it difficult, you do it slowly. Okay, so what I did was rubbing my tummy and at the same time I am patting my head at the same time. Okay, so this is called Ruba Dub. Connects left and right brain hemispheres and focuses attention and take our mind off whatever was preoccupying it beforehand. तो ये हो गया, इसको हम लोग रूबा डब कहते हैं। We will again also revise the exercises which we have done. तो ये हो गया रूबा डब। Okay, the other, this is also for attention and concentration. ये जो है alphabet edit. Okay, तो ये alphabet edit में हम लोगों को क्या करना है कि अगर मैं कहती हूँ कि L अगर मैं कहती हूँ तो the left hand goes up. If I say R, the right hand goes up. And if I say T, both the hands go up. Is that understood? L is left, R is right, and T is both the hands together. L, R, T, L, R, T, L, R, T. L, R and T. और यहाँ पे इन्होंने कोई मतलब लेटर्स दिए हैं, सो बेस्ड ऑन दैट हम लोगों को हाथ ऊपर करने हैं। ओके, तो ये जो है अगर समझो कोई दूसरा, अगर मैं समझो A to Z में अगर मैं समझो S बोलूं, तो S अगर बोलूंगी तो कुछ भी नहीं, हाथ कोई भी हाथ ऊपर नहीं करना है। तो ये भी करने के लिए we have to pay attention and we have to concentrate on certain things. Okay, तो should I, मैं बोलूं, आप लोग तैयार हैं करने के लिए? L means left hand, R means the right hand, and T means both the hands. If I say Z, you have to pay attention and not raise any hand at that time. Okay, so मैं थोड़ा सा बोलूं, will you be able to raise your hands appropriately? I cannot see people. I can just see some of the should I L R अगर मैं बोलूं तो will you be able to raise your hands? Yeah, are you able to hear me? Yeah. Okay,
So what we have to do is L मैं बोलूंगी तो left hand, R बोलूंगी तो right hand, and T बोलूंगी तो both the hands. Okay, so मैं थोड़ा सा slow बोलूंगी so that it becomes easy for you. Okay, so L, T, R, T, T, T is both the hands. I can't see. T, L, H, I मैं बोलूंगी तो कुछ भी नहीं करना है. J, K, L is left. M, N, कुछ भी नहीं करना है. L, R, T, R, L, O, कुछ नहीं करना है सर. O, P, Q, R, S, T, U, T, L, R, T, R, V, W, X, Y, Z, T, L, R. ओके, सो ये हमारे ब्रेन को कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ स्टिम्युलेशन की जरूरत होती है, जो जनरली हमारे यंग एज में जब भी आप काम करते हैं, कोई प्रोफेशन में जब भी आप होते हैं, तो कॉन्स्टेंटली that stimulation does take place, which does not take place so much in old age, and that is why we have to provide that stimulation to our brains, and these kind of exercises are good for doing that. ओके, तो ये हो गया हमारा अल्फाबेट एडिट. तो और भी एक्सरसाइजेस हैं, बट यू नो मे बी व्हाट वी कैन डू इज जस्ट वी कैन रिवाइज all that we have done, and you know, maybe we can take up the other exercises next time. Okay, so I think we have covered around 7 to 8 exercises. Around 8 exercises हम लोगों ने cover किए हैं. So maybe we can just revise. Would you like to revise, or आप लोगों को पता चल गया है? I cannot hear anything. अमृता, आपने 8 नंबर के बारे में बताया था. Why only 8? Why it is important? Why not तो another number ये 4 or 5? So they are something like that? saying that ये 8 जो है ना, zigzag में for orientation and directionality, 8 is very very important. जो zigzag Okay, इसमें जाता okay. है ना, that is the Okay, reason. okay. The curves and all are there. Yes, yes. Thank you, dear. Which is not there in Indian Parliament. Yes. So if you want, we can revise whatever we have done. Just go through those exercises. Actually, sometimes physically it is better to actually show these exercises physically. बट ये हम लोगों ने ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस काफी, ये पैंडेमिक के टाइम पे भी हम लोगों ने काफी सारे एसोसिएशंस के साथ किए थे. जैसे मैंने कहा कि ये हमारे मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों ही साथ में हो जाते हैं, और ये रिसर्च में काफी मतलब ये ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस हैं. देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज कॉल्ड कार्डियोमेलिन, तो जिसमें दोनों एक साथ हो सकते हैं. तो ऐसे नया नया रिसर्च सामने आ रहा है, and they are saying that mental exercise is also as important as physical exercise. That is being stressed. Okay. So हाँ, कर लिया I- आज. so either अब we लगा रहे कुछ revise,
these Oh. exercises, or maybe we, yeah, sir, is it this? I mean, have we overshot our time or what is it? No, no, not at all. Okay. So, तो ये जो है ना, मतलब जो इवन द नेम सजेस्ट कि हमारे ब्रेन को भी जिम की जरूरत है. ओके, तो जैसे हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वृद्ध लोग भी आजकल बहुत सारे जिम जा रहे हैं और फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है. ये काफी वृद्धों में भी काफी अवेयरनेस आ गया है. तो जैसे हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, एजाइल रखने के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए जैसे एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज की उतनी ही जरूरत है. That is what these exercises are also constantly telling us. ओके, तो फर्स्ट वी सॉ ब्रेन बटन्स, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये हैंड्स को हम लोगों ने कॉलर बोन के यहाँ पे हम लोगों ने मसाज किया, एंड एट द सेम टाइम वी lightly rubbed our bellies. Okay, that is brain buttons. तो जनरली आप ये मतलब एक मिनट एक साइड पे आप कर सकते हैं. तो सब मिला के 2 मिनट्स के लिए एक एक्सरसाइज यू कैन डू. मैडम, हाँ, इसे जो है दोनों कॉलर पर करना है या एक से ही करना है? मुझे सुनाई नहीं. बोथ साइड और वन साइड? बोथ द साइड्स, ये हम Both लोग the sides. बोथ द Thank you. साइड्स यू हैव टू डू. यस. दूसरा हम लोगों ने देखा इट इज क्रॉस क्रॉल. क्रॉस क्रॉल में क्या किया हम लोगों ने, द एल्बो हैज टू बी जॉइंड टू द नी. Knee, that is cross. Okay, so right knee has to be joined to the right elbow, has to be joined to the left knee. The left elbow has to be joined to the right knee. It is cross, not the same knee. Okay, that is called the cross crawl. ये हम लोगों ने दूसरा ये देखा है. Right hand has to be joined to the left, right elbow, left knee, left elbow, right knee, and at the same time we have to see that our backs don't come forward while doing the exercise. The third we saw was hiccups. Hiccups में क्या देखा हम लोगों ने, थोड़ा सा हमको स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तभी ये exercise can be useful, where we joined the hands, entangled our fingers and brought them close to our heart, and at the same time we are crossing our legs. Okay, that is the hiccups. दूसरा हम लोगों ने देखा कि names in the air, जो भी आपको important लगता है, you can write that in the air, first forwards and then backwards. ये क्यों हम लोग करते हैं, हमारी मेमोरी को एक्सरसाइज करने के लिए. जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगता है दैट वी कैन राइट इन द एयर. दूसरा हम लोगों ने देखा लेजी 8. लेजी 8 में हम लोगों ने देखा कि हम लोग थोड़ा सा टिल्ट होने के बाद हम लोगों को 8 नंबर वी हैव टू राइट इन अ स्लीपिंग पोजिशन. उसमें हम लोगों ने देखा कि द अदर वेरिएशन इज दैट हम लोग इंडेक्स फिंगर को देख के द टिप ऑफ द फिंगर एंड आई एम अगेन ड्रॉइंग द फिंगर 8 ऑन द साइड. द थर्ड वेरिएशन व्हिच आई सॉ वाज कि हम लोगों को टिप ऑफ द थंब देख के हम लोगों को साइड में ये 8 निकालना है, दोनों भी साइड करना है. यहाँ पे ये ऑनलाइन दिखाना मुश्किल है, इसके लिए मैं ये एक ही साइड में दिखा रही हूँ. तो टिप ऑफ द थंब इज द थर्ड वेरिएशन. बाद में हम लोगों ने देखा एलिफेंट. ओके, तो इसमें भी हम लोगों ने 8 ड्रॉ किया है, जिसमें एक हाथ को हम लोगों ने कान के पास लिया हाथ को, और वो हाथ से हम लोगों ने 8 को ये किया लाइक
Elephant is moving its trunk. Then you take the other hand and then you draw the this 8. Okay, so ये years के लिए they have said it's important, short term memory, long term memory, thinking ability. Okay, so it contributes to that. Then we saw Rubadub. उसमें भी हम लोग 2 एक्टिविटीज साथ में हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोगों ने हेड को टैप किया and then we patted our head and also we rubbed our belly in a clockwise direction. Okay, this also helps in connecting the left and the right brain. तो ये हो गया रूबाडब. बाद में हम लोगों ने देखा अल्फाबेट एडिट, जो हमारे अटेंशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ओके, तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि एल अगर बोलेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड हम लोग ऊपर करेंगे, राइट बोलेंगे तो हमारा राइट हैंड ऊपर करेंगे, और टी बोलेंगे तो हमारा दोनों हाथ हम लोग ऊपर करेंगे. ओके, सो ये हो गए करीब 8 हम लोगों ने रेंजिंग एक्सरसाइजेस देखे. सो एज आई टोल्ड यू देयर आर अ सीरीज ऑफ 26 brain gym exercises. So I have covered only 8 today. Okay. So thank you very much for listening so patiently. So as I said, doing these consistently also brings benefits, but doing them on a regular basis is what is the most important. Thank you, Amrita. Thanks a lot, dear. Thank you, madam. Thank you. थैंक यू अमृता जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक कवर किया. एक बात तो सीख लिया हम लोगों ने, ये हम कभी नहीं कहें अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, भूल गया. हाँ, ये हम लोग अक्सर बोलते हैं. किसी कोई मिलता है, अरे भाई क्या क्या नाम है, तो तुम, मेरा नाम है अक्षय, आपको परसों बताया तो था. अरे यार उम्र हो गई है ना. हाँ. वी शुड नॉट से दैट. करेक्ट. नहीं, पर आज हम लोग, आप बोल रहे हैं वो एकदम सही है सर. हम लोग देखते हैं कि ये यंगर जनरेशन को भी ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, इतना सारा सोशल मीडिया है, बॉम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इतना है कि ये यंगर जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम है. देयर आर टू मेनी थिंग्स. Okay, so it's not just, I think, restricted to old age, but I think memory aids are very, very important. And you know, a philosopher had said a long time back, okay, you know, whatever is selective memory होती है, वृद्धत्व में भी selective memory. तो he had said कि एक वृद्ध आदमी मेरा ट्रेजर कहाँ पे रखा है वो भूलता नहीं है. ट्रेजर जो कहाँ है वो भूलता नहीं है. क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट. ओके, तो जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो जनरली हम लोग भूलते नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशन, कंसंट्रेशन, बार बार उसके बारे में सोचना, रिपीटेशन वो होता है. ओके, सो दीज थिंग्स आर व्हाट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. और ये कल्चरली मुझे लगता है काफी ऑल्सो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दैट मेमोरी अवॉइडेंस. दूसरा आपका जो अल्फाबेट एडिट है, वो बचपन का एक खेल मुझे याद आ रहा है. हालांकि शायद इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है. हम लोग छोटे छोटे फ्रेंड मिल करके कहते थे टेबल पे उंगली रखो. हाँ, चिड़िया उड़, तो उठा दिया. ये बोल दिया घोड़ा उड़, किसी ने उठाया, बोले अरे तू तो फेल हो गया. हाँ, करेक्ट. तो बात यहीं पे आ जाती है सर, ये मीनिंगफुल स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन को प्रोवाइड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच वी ऑफन डू नॉट डू. जी, थैंक यू. थैंक यू. Thank you very much, Amrita. It was an exciting session. Thanks a lot. Very, very informative, very knowledgeable. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Your sessions are always interesting, Amrita dear. Thank you. Thank you. Thank you for your kind Always words. interesting. Thank you. हम लोगों के लिए होता है ना, सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए तो अच्छा ही है ना.